morning and Assalamu alaikum students. I'm your English teacher, Miss Sana Maria. Today is 27 May 2021 and the day is Thursday. Hope you all are fine by the grace of God. Now I'm going to share the screen with you. Today we are going to revise our chapter. आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर रिवाइज करेंगे. चैप्टर फर्स्ट, our first chapter name is chapter number 1, the last sermon of the holy prophet. जो लास्ट sermon था होली प्रॉफिट का, उसके हवाले से इसके अंदर कंप्लीट हमारे पास इंफॉर्मेशन है. टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia, in a respective in our respected Quraysh family. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the Quraysh not to worship their false god. He told them that he was the prophet of Allah, and asked them to accept Islam. They thought that he was against their gods and their ancestors. They opposed that new faith so much that the Prophet ﷺ asked the believers to migrate to Yathrib, a city 320 kilometers, 200 miles north of Makkah. But with time, as many people starting accepting his message and converting to Islam, the Quraysh become more aggressive and started making attempts on his life. Hence, when Prophet ﷺ got positive signal from Yathrib, he also decided to immigrate there. After 8 days journey, he reached the outskirts of Yathrib on 28 June 622. But he did not enter the city directly. He stopped at the place called Quba, a place some miles from the main city, and built a mosque there. On 2nd July 622, Prophet Muhammad ﷺ entered the city. The event is known as Hijrah and makes the beginning of the Islamic calendar. Yathrib was soon renamed Madinatul al-Nabi, literature city of the Prophet, but non-Nabi was soon dropped and its name became Medina, meaning the city. At the time of arrival of Prophet ﷺ in Medina, the city had four broad groups of people. They were the Muslims, including those who were from Medina and those who had immigrated from Mecca. Then there were that is those who embrace Islam in name only but actually were against it. Now, अब इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमारे पास बताया गया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न पैदा कब हुए थे? पैदा हुए थे 1571 एडी में पैदा हुए थे सऊदी अरेबिया में. ये कुरैश फैमिली से बिलोंग करते थे. कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड. अब क्या थे कुरैश? क्या थे कुरैश के लोग जो थे वो एक खुदा पे जो थे वो ईमान नहीं रखते थे और दे यूज टू वर्शिप आइडल्स, मीन्स वो भूतों की जो वो पूजा करते थे. ठीक है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने क्या कहा कि आप कुरैश को डू नॉट वर्शिप देयर फॉल्स गॉड को, आपको फॉल्स गॉड की वर्शिप नहीं करनी चाहिए. ठीक है. तो उन्होंने अल्लाह का मैसेज जो है दूसरों तक पहुंचाना शुरू किया, बट इस वजह से लोग उनसे उनके बहुत अगेंस्ट भी हो गए थे. ठीक है. और इसके अंदर हमारे पास क्या मैसेज दिया हुआ है? जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट सरमन था उस पर उन्होंने क्या मैसेज दिया था? उन्होंने मैसेज दिया था कि हमें सबको जो है वो एक साथ मिलके जो है
वो रहना चाहिए। उनका क्या मैसेज था? उनका मैसेज द एवरी मुस्लिम is a brother to every Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood। ठीक है, सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और उन्हें मिलके भाईचारे से रहना चाहिए। Nothing shall be limited to the Muslim which belongs to the fellow Muslims unless it was given freely and willingly। The holy prophet completed his last sermon by saying, उन्होंने अपना जब अपना जो लास्ट सरमन था उसको कंप्लीट किया था तो क्या कहा था? बाय माई विटनेस ओ गॉड दैट आई हैव कन्वे योर मैसेज टू योर पीपल। अब वो क्या कहते हैं? वो अल्लाह ताला से भी बात करते कि मैंने जो है वो आपका मैसेज लोगों तक कन्वे किया। द मैसेज कन्वेड इन दिस सरमन आर ऑल टाइम। इफ द मुस्लिम फॉलो दीज मैसेज, अगर मुस्लिम जो है इस मैसेज को फॉलो करें, the result will be the fair and equitable society in which there will be the honest and justice will be the guiding principle। ठीक है, अब क्या था मैसेज इसमें कि हमें सबको जो है वो भाईचारे से रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को, इन असूलों को माने तो क्या होगा कि सब जो है वो सबके साथ जो है वो सब ऑनेस्टी से और इक्वलिटी से जो है वो एक सोसाइटी में रहेंगे। ठीक है, ये तो था हमारे पास मैसेज। ठीक है, जो उन्होंने मैसेज दिया था कि सब आदम जो है सब ऑल माइंडेड इज फ्रॉम आदम एंड आदम वाज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। सब जो है किससे बने हुए हैं? आदम की औलाद है और मिट्टी से बने हैं। द नोबलेस्ट ऑफ यू is in Allah's side is the most God fearing, and Arab was not superior over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. A white was non-superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white except by purity and good action. I therefore crushed under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth। अब क्या है कि कोई भी किसी से कमतर और सुपेरिटी और कोई भी किसी से कमतर या किसी से बढ़कर नहीं है, कोई भी किसी से कमतर नहीं है। ठीक है, कोई हम में क्या है? सुपेरियरिटी किसी पे नहीं है। ठीक है, तो सब जो है आपस में इक्वल है। ठीक है, कोई रंग की वजह से काले ना गोरे की वजह से कोई किसी से ऊपर है, सब जो है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैसेज था। अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइजेस पे। इसकी एक्सरसाइज हमारे पास कौन कौन सी है? एक्सरसाइज 1 है। अब एक्सरसाइज 1 के अंदर हमारे पास क्या है? रीड द टेक्स्ट एंड टेक द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, अभी हमारे पास टेक्स्ट है। द टेक्स्ट इज अबाउट, ये जो हमने टेक्स्ट रीड किया वो किसके हवाले से था? ठीक है, द टेक्स्ट इज अबाउट द बैटल ऑफ इस्लाम, the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the migration and teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last pilgrimage। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन थे। सेकंड क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इज मेंशन इन द लास्ट सरमन एज गिवन इन द टेक्स्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 1 है हमारे पास। एक्सरसाइज नंबर 2 है फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम। ठीक है, आपने ये टेक्स्ट आपने अपने टेक्स्ट में से इन वर्ड्स को सर्च करना है और क्या करना है? इनको अंडरलाइन करना है। एक्सरसाइज 3 में हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज 3 में चूज एनी 10 वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट above and use them in your own sentence, write these sentence in your notebook। अब आपने क्या करना है? आपने इन वर्ड्स को अपनी 10 वर्ड्स को यूज़ करना है सेंटेंसेस के अंदर। आपने 10 को नहीं बल्कि आपने इन कंप्लीट्स को यूज़ करना है सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप इसमें एक्सरसाइज है कि आपने अपने पार्टनर से भी एक्सचेंज करना है, तो आपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो आपको इन सब वर्ड्स के सेंटेंसेस जो है आने चाहिए, सेंटेंस मेकिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 4 है। इसके अंदर भी हमारे पास क्या? रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सर्कलिंग द राइट आंसर। आपने यहाँ पे राइट आंसर पे जो है वो सर्किल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 6 है। अब हमारे पास क्या ये टेबल दिया हुआ है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब हमने इसमें से मैच करना है कि कौन सा हमारे पास आंसर है, तो वो हमने कॉलम सी में लिखना है। जैसे कॉलम नंबर 1 का जो है वो आंसर क्या है? वो एफ है। ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर हैव राइट्स ओवर ईच अदर।
सब पे जो है इक्वल राइट्स, सॉरी, हु लेड अ राइटियस लाइफ, ठीक है, एफ से हम इसको मैच करेंगे। तो हमने इसी तरह इन सबको मैच करना है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 6 है और ये हमारे पास एक्सरसाइज 8 है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइजेज जो हैं, अब आपने इन एक्सरसाइजेज को क्या करना है, आपका असाइनमेंट क्या है, डू मेमोराइज एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8, ठीक है। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस के लिए हैं, ठीक है। अब आपने इस चैप्टर में इन एक्सरसाइजेस की तैयारी करनी है, अच्छे से चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, इन एक्सरसाइजेस की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आप लोग का एक चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग 1 बाय 1 सब चैप्टर्स की तैयारी करेंगे। तो आपने ये एक्सरसाइजेस अच्छे से जो है वो उनको लर्न करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। सो टुडेज क्लास इज़ ओवर। आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ओके स्टूडेंट, सी यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।